Good evening, sir. Good evening, everybody. How Good are you, evening, sir. Varun? How are you, Varun, today? Sir, I'm better than earlier and you. Yeah, better than earlier. And how are you, Bhavana, today? Sir, good, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. How are you? Say, I'm better than earlier. Okay. So, my dear friend, today is a very, very important topic that I'm going to discuss with all of you. There is something about idioms and phrases also. Okay, Varun, you tell me about what do you mean by magician according to you? What does it mean? Magician का मतलब क्या होता है Varun? Sir, according to me, a magician is kind of a person who could perform anything which seemed to be impossible, but it is only just Yeah, you would like to say that. it is only just like distraction. So Bhavana Gupta, Bhavana कहाँ पे? Tell According me to me, please. magician is the person who illustrates the uh, things by distracting the audience from one thing to another. Okay, thank you. Now this turn of Bhavana. Bhavana, you tell me what does it mean? Magician. What do you mean by the word magician? The word magician. So, according to me, magician means someone who can do anything with its tricks, special tricks, and his specialty. Let's see about that. So, Varun, what does it? Do you understand? What does it mean? I have given a circle also and some word I have written. Could you understand what is this? Varun, are you getting Yes, sir. what should we do with the help of this one? What could we do with the help of this Sir, one? we could create sentences by using this circle. Okay, we could create sentences by using this circle. Any example? For example, suppose I take the word take, which is the first word in the circle, and if I have to create a sentence, then I could create that I I took bath today, or I take bath every day. Okay, I great. take bath every day. You take bath every day, and we could create 8 sentences like this. Bhavana, do you understand what does it mean? Could you imagine what? So, they Yeah. are words. Tell Uh, me. so, maybe that we can learn English uh, from words. Mhm. Okay, that's great. I will tell you all these things. Yes, sir. Today's my topic is idioms. You must have heard muhavre in Hindi, right? Varun, could you tell me one muhavra in Hindi? In Hindi. Have you heard आपके पेट में चूहा कूद रहा है Yes, सुबह से sir. ही? Yes, राइट. sir. तो पेट में चूहा कूदना भी एक मुहावरा हो गया, राइट? अब इसका मीनिंग क्या हुआ? 9 to 11 होना. या 9 2 11 होना, पेट में चूहा कूदना, है ना? Yes, sir. दांतों तले क्या बोलते हैं? दांतों तले या नाक को चने चबाना, नाक को चने चबाना, ईद का चांद होना, बहुत सारी बातें होती हैं जो Yes, हमने sir. हिंदी में पढ़ा है. Now let's see about idioms. The question है, can you tell me what is idioms? Right. A group of words whose meaning is different from the meaning of the individual words is called idioms.
मीन्स अगर आप आई वॉज वंडरिंग, अब इसका एक अलग अलग वर्ड लेंगे तो उसका जो सेंस निकलेगा उससे अलग हो जाता है। जैसे हमने कहा 9 2 11 होना, है ना। अब 9 2 11 का जनरल मीनिंग लेंगे तो 11 2 कितना हो गया, 13 1 कितना हो गया, इस तरह से मीनिंग हो जाती है। बट 9 2 11 का मीनिंग क्या होता है, भाग जाना होता है। उसी प्रकार से आई वॉज वंडरिंग का जो मीनिंग है कुछ हट के होता है, जो लिखा हुआ है इससे हट करके। जैसे देखेंगे यहाँ पे आई विल टेल यू ऑल दी थिंग्स। सेंटेंस फॉर्मेशन, जैसे आपने कहा आई एम एट अ लॉस। अब अगर एट अ लॉस यूज करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ। जबकि एट अ लॉस का मतलब क्या हुआ, घबरा जाना। क्या मीनिंग होता है इसका, घबरा जाना। घबरा जाना। आई एम एट अ लॉस टू डिसाइड व्हाट टू डू। मैं ये डिसाइड करके क्या करूं ये सोच के मैं घबरा गया हूं, है ना। आई एम एट अ लॉस, मैं घबरा गया हूं ये सोच के कि करूं तो क्या करूं। रामानुजन वॉज क्वाइट एट होम इन। अब यहाँ पे एट होम इन का मतलब क्या होता है, निपुण होना। जैसे हमने कहा वरुण इज क्वाइट एट होम इन मैथमेटिक्स। वरुण मैथमेटिक्स में निपुण है, एक्सपर्ट है। तो एक्सपर्ट के बदले में हमने क्या यूज किया, एट होम। एट होम का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये इडियम मुहावरेदार सेंटेंस है जिसका मीनिंग होता है निपुण होना। द थिप वॉज कॉट रेड हैंडेड। अगर सिंपली रेड हैंडेड का मतलब क्या होता है, लाल हाथ, है ना। लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, रंगे हाथों। तो थिप वॉज कॉट रेड हैंडेड मतलब चोरी करते हुए पकड़ा गया करने का। जब चोरी कर रहा था उसी समय पकड़ा गया। द थिप वॉज कॉट रेड हैंडेड। वो रेड हैंडेड यहाँ पे एक मुहावरा इडियम हो गया। इंडियन फार्मर्स आर नॉट वेल ऑफ। और वेल ऑफ का मतलब क्या हुआ, खुशहाल। इंडियन फार्मर्स आर नॉट वेल ऑफ, दे आर नॉट सो हैप्पी, वे खुशहाल नहीं है। एंड बुक्स आर लाइंग एट 6 and 7। तो लाइंग एट 6 and 7 का मतलब क्या होता है, बिखरा होना। क्या होता है, सारे बुक्स हैं इधर उधर बिखरे पड़े हैं सर। बुक्स आर लाइंग एट 6 and 7। तो भी जो आपने देखा वो यहाँ पे एट अ लॉस देखा, एट होम, रेड हैंडेड, वेल ऑफ, लाइंग एट 6 and 7, राइट। एंड ऊपर में देखा आई वॉज वंडरिंग। All these are called idioms. It has the meaning different from others. It's a real meaning, different from real meaning. Written in text. उससे हट के होता है। अब यहाँ पे देखेंगे आपने कहा I was wondering. It shows great politeness. It sounds much more natural. I was wondering if you could give me office hours. यहाँ पे I was wondering का मतलब क्या हुआ, if you are talking about great politely, so you are talking about talking with politeness. तो आप कह सकते I was wondering if you like to join me for lunch. इसमें मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करेंगे लंच में। क्या बोलेंगे, I was wondering if you like to join me for lunch. इसका अल्टरनेटिव्स भी है। I would be most grateful if you could give me office hours. I would be most grateful. मैं आपका बहुत ही एहसानमंद रहूंगा अगर मुझे ऑफिस आवर्स में कोई काम करें तो, दे दें तो। Would it be possible to give me office hours? का मतलब हुआ क्या ये पॉसिबल है कि मुझे ऑफिस आवर्स में कोई काम दे दें आप, या I would appreciate if you could give me। तीनों में देखा आपने पोलाइटली बात कर रहे हैं। जब आप पोलाइटली बात करते हैं तो उसके लिए हम I was wondering का यूज करते हैं। I was wondering if you could, if you would like to join me for lunch. Miss, I would appreciate if you join me for my lunch. Example, another example I'm showing, to make both ends meet. To make both ends meet. इसका मतलब क्या हुआ, to cover one's expenses. The poor cannot make both ends meet. क्या बोलेंगे, the poor cannot make the both ends meet. Are you getting? The poor cannot make the both ends meet. इसका मतलब क्या हुआ वरुण,
Varun, Yes, sir. the poor cannot make both ends meet these days. To सर कि cover जो one's गरीब लोग हैं expenses. वो हाँ, बोलिए। आजकल जो गरीब लोग हैं जो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको आजकल के टाइम पे बहुत दिक्कत हो रही है। आप बताएं भावना, क्या मीनिंग हो सकता है? सर कि जो पुअर हैं उनको वो अपने एक्सपेंसेस मीट नहीं कर पा रहे हैं these days में। हाँ, both ends meet to cover one's expenses, अपने खर्च को वहन नहीं कर पा रहे हैं, है ना? 2 जून का खाना तक नहीं खा पा रहे हैं। Cannot make both ends meet these days. मतलब जो एक्सपेंसेस है, छोटे छोटे एक्सपेंसेस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसको बोलते हैं टू मेक Yes, बोथ sir. ends meet. अब टू मेक अप वंस माइंड, टू मेक अप वंस माइंड, जैसे आपने कहा लेट्स मेक अप आवर माइंड टू वर्क हार्ड, या आई हैव मेड आवर माइंडेड, कैसे बोलते हैं? आई हैव मेड अप माई माइंड टू गो टू अमेरिका। आई हैव मेड अप माई माइंड टू गो टू अमेरिका। इसका मतलब क्या हुआ? सर मैंने डिसाइड कर लिया, डिटरमिन कर लिया कि मेरे को अमेरिका जाना है। आई हैव मेड अप मन माई बना लिया। माइंड, आई हैव मेड अप माई माइंड टू लर्न जर्मन। मैंने जर्मन सीखने का मन बना लिया है सर। इट वॉज टू डिटरमिन होना, आपने सोच लिया कि मुझे करना ही करना है, तो टू मेकअप वंस माइंड। कैसे बोलेंगे वरुण? मैंने अपना डिसाइड कर लिया है जाने का। आई हैव मेड अप माई माइंड, कैसे बोलेंगे वरुण? I have made up my mind to go. यस, है ना? टू बी टेकन अबैक। अब यहाँ टू बी टेकन अबैक का मतलब टू बी सरप्राइज्ड। डोंट बी टेकन इन बाय हिज ऑयली वर्ड्स। मतलब कहते हैं ना कुछ, डोंट बी टेकन इन या टेकन अबैक, ये सारे हैं मीडियम इडियम्स कहलाते हैं। अपहिल टास्क, इट इज एन अपहिल टास्क टू रन अ कॉलेज। टू डिफिकल्ट वर्क, अगर बहुत ही डिफिकल्ट वर्क होता है ना, बहुत ही डिफिकल्ट वर्क, उसको हम अपहिल टास्क कहते हैं। जैसे टू गेट गंगा फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, गंगा को वहां से यहाँ तक लाने की जो बात होती है, राइट, तो उसे क्या बोलेंगे? अपहिल टास्क। इट इज एन अपहिल टास्क टू रन अ कॉलेज। आर यू गेटिंग दिस वन? टू बर्न मिडनाइट ऑयल, टू बर्न मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब क्या हुआ? टू वर्क हार्ड टिल लेट इन नाइट। टू वर्क हार्ड टिल लेट इन नाइट इज कॉल्ड टू बर्न मिडनाइट ऑयल। जैसे he burns the midnight oil to get first division in the class. अच्छा, टू बर्न मिडनाइट ऑयल पहले सुना है कभी वरुण आपने? हैड यू हर्ड अबाउट दिस वन अर्लियर? Yes, sir. कब सुना था आपने इसको पहली बार? Sir, in the earlier classes you told me about it. भावना, आपने सुना था? हैड यू हर्ड अबाउट दिस वन, टू बर्न मिडनाइट ऑयल? No, sir, I didn't. ओके, तो इसका मतलब टू वर्क हार्ड टिल लेट इन नाइट, तो रात रात भर जग के पढ़ना, उसको बोलते हैं टू बर्न मिड, ही बर्न्स द, या टू बर्न मिडनाइट ऑयल, टू वर्क हार्ड टिल लेट इन नाइट। It's a bone of contention, a cause of quarrel. You must have heard Kashmir has become the bone of contention between India and Pakistan. अब तो नहीं है, लेकिन पहले कश्मीर, once Kashmir had become the bone of contention between India and Pakistan. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या हो गया था? ये bone of contention, झगड़े का कारण बन गया था कश्मीर। तो ये जो देखा आपने, टू मेक बोथ हैंड्स मीट, टू मेक अप one's mind, to be taken aback, uphill task, to burn midnight oil, and bone of contention. ये सारे क्या हैं? ये सारे ही क्या हैं? क्या हैं ये सारे? What are these? वरुण? Idioms. Idioms, right? All these are called idioms. So let us see next one. तो इडियम समझ में आ गया आपको भावना? इडियम अगर नेक्स्ट डे पूछा जाए तो बता सकते हैं आप? Yes, sir. वरुण आप भी बोल सकते हैं। नाउ द सेकंड थिंग, टॉपिक टू Yes, प्रीपोजिशन। sir.
वरुण, व्हाट डज इट मीन? प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है आपके अनुसार? Sir, according to me, prepositions are the words which are used to define the position of any verb or, sorry, noun or pronoun in the sentence. आप बताएं भावना, यू टेल मी व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज प्रीपोजिशन? So it gives meaning to a proper meaning to a sentence. प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि प्रीपोजिशन आर दैट वर्ड व्हिच ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन, राइट? जो नाउन which या always come to प्रोनाउन the बिफोर, ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। व्हाई? टू शो द रिलेशनशिप। जैसे आपने कहा देयर इज अ काउ इन द फील्ड, जैसे आपने कहा देयर इज अ काउ, सर एक गाय है, और द फील्ड, गाय भी इधर हो गया, द फील्ड भी हो गया, बट फील्ड में क्या है, कहाँ पे है वो? इन आपने लगा दी, इसका मतलब वो गाय खेत में है। कहाँ पे है वो? इन द फील्ड। तो इन आपने, द in फील्ड क्या हुआ यहाँ पे? नाउन हुआ। द फील्ड इज कॉल्ड नाउन, उसके पहले आया यहाँ पे। सेकेंड, ही इज फॉन्ड ऑफ टी, वो चाय का बहुत शौकीन है सर, राइट? तो टी यहाँ पे क्या हुआ? नाउन है ना। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। तो टी आपका नाउन हुआ, उससे पहले प्रीपोजिशन ऑफ आया है ना? ही इज फॉन्ड ऑफ टी, वो चाय का शौकीन है। तो यहाँ प्रीपोजिशन नाउन के पहले आ रहा है, देख रहे हैं आप। द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर, द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर, वो कैट ने क्या किया? चेयर से कूद गया, चेयर से जंप कर गया। अब यहाँ ऑफ कहाँ से जंप किया? ऑफ किसके पहले आ रहा है? ये भी नाउन के पहले आ रहा है। और तीनों में आपने क्या देखा? फील्ड नाउन है, उसके पहले आर्टिकल आया, है ना? अब यहाँ पे टी तो अकेला नाउन है, खाने पीने वाले वस्तु के साथ आर्टिकल नहीं आता। चेयर नाउन है, उसके पहले आर्टिकल आया। जनरली नाउन के पहले आर्टिकल आते हैं, बट खाने पीने वाली चीजों के पहले आर्टिकल नहीं आता है। तो अब डिफाइन कैसे करेंगे आप? देखिए प्रीपोजिशन क्या होता है। इफ somebody asks you to put say a preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show the relation, है ना? ये नाउन या प्रोनाउन के पहले क्यों रखे जाते हैं? ताकि ये रिलेशन को शो कर सके। जैसे आपने कहा आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, या आई एम सिटिंग इन द चेयर। अच्छा ये बताइए, चेयर के पहले ऑन भी हो सकता है, इन भी हो सकता है, या सिर्फ ऑन या इन होगा? so सिर्फ on होगा। Sir, on होगा। इन नहीं आता क्या? No sir। इन आता है। जैसे आप चेयर है ना, हाथ रखने वाला देखते होंगे चेयर के अंदर, जैसे हाथ रखने वाला देखते होंगे आप, सोफा सेट पे जब बैठते हैं तो हाथ रखने वाला बना हुआ होता है ना? उसको आप उठा भी सकते हैं और उसको गिरा भी सकते हैं। तो जब गिरा हुआ पोजीशन में होगा, उसका मतलब उसके अंदर बैठे हैं आप, उसको उठा करके फिर उठना पड़ेगा आपको, है ना? और ऑलरेडी उठा हुआ है तो ऑन हो गया प्लीज। तो कहने का मतलब जब अंदर में है, उसके हाथ रखने वाला बना हुआ है, बाजू वाला है, इसका मतलब इन द चेयर हो गया। अगर उसको बाजू वाला हटा दें आप, ऑन द चेयर हो जाएगा, राइट? अब आगे बात करेंगे उसको डिटेल में। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में बात करते हैं। तो सिंपल प्रीपोजिशंस हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशंस हैं, है ना, फ्रेजल प्रीपोजिशंस हैं। तो तीन तरह के प्रीपोजिशन के बारे में टुडे वी आर गोइंग टू टॉक, है ना? तो एक सिंपल प्रीपोजिशंस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रीपोजिशन। इसमें क्या क्या आता है? एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, एंड ओ डबल एफ, ऑफ, ऑन, आउट, थ्रू, टिल, एंड उसके बाद क्या है? टू, अप, विद। ये सारे सिंपल प्रीपोजिशन है। आपने कहा ना जैसे आई एम इन द रूम, तो इन जो यूज किया वो क्या हो गया? सिंपल प्रीपोजिशन कहलाता है, राइट? एंड
he is at my home या he is at his home. At क्या हुआ? सिंपल प्रीपोजिशन हुआ. Got it? So second one इस समझ में आ गया सिंपल प्रीपोजिशन वरुण? Yes, sir. है ना, ये हम जानते भी हैं. Now let us see compound preposition क्या होता है. Which are generally found by prefixing a preposition. Generally हम a और जैसे टू ए नाउन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, किसी नाउन के पहले, किसी एडजेक्टिव के पहले, किसी एडवर्ब के पहले हम ए लगा देते हैं, है ना. जैसे अब देखिए वहां पे क्या होता है, अबाउट, अबाउट में ए लगा हुआ है. अमोंग, अमोंग में भी ए लगा हुआ है. बिलो, इसमें बी यूज किया गया है. इनसाइड में इन यूज किया गया है. अबव, अमोंगस्ट, बीनीथ में बी यूज किया गया है. आउटसाइड, अक्रॉस. मिस ऐसे वर्ड जो होते हैं, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. क्या बोलेंगे इसको? दो या दो से ज्यादा. तो विच आर जनरली फाउंड बाय प्रीफिक्सिंग अ प्रीपोजिशन. प्रीफिक्सिंग अ प्रीपोजिशन का मतलब क्या हुआ? यूजुअली ए इज गॉट टू नो और बी मतलब बाय टू अ नाउन एंड एडजेक्टिव और एन एडवर्ब. किसी नाउन के पहले या किसी एडजेक्टिव के पहले या किसी एडवर्ब के पहले हम यूज करते हैं वहां पे. जैसे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए टेल मी कंपाउंड प्रीपोजिशन 10 का नाम बताइए, वरुण टेल मी कंपाउंड प्रीपोजिशन 10, कैसे बताएंगे? अबाउट, अमोंग, ऐसे बोलिए. म्यूट किया हुआ है आपने, यू हैव म्यूटेड योरसेल्फ. About, among, below, inside, above, amongst, beneath, outside, across, around, beside, underneath, along, before, between, within, with, amid. यहाँ पे क्या हुआ? वी आर हैविंग सिलेबल्स. कितने सिलेबल्स हो जाते हैं? अबाउट, अबाउट दो सिलेबल हो गए. अ अलग है, अबाउट अलग है. अमोंग, अ अलग है, मोंग अलग है. बिलो, बी एंड लो, है ना. इनसाइड टू Yes, sir. सिलेबल्स आ गया. इस तरह से जो दो सिलेबल से मिलकर बने होते हैं, जनरली हम इसको क्या बोलते हैं? वी से क्या बोलते हैं? कंपाउंड सिलेबल्स कहते हैं. सॉरी, क्या बोलते हैं इसको? कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं. Compound preposition. Yes. So I told you about simple preposition, I told you compound preposition, I told you, and third I'm telling you phrasal preposition, phrases preposition, like phrase. इसमें आप सुना according to, आपने सुना भी होगा according to. किसके अनुसार कहेंगे कि give me blood and I will give you freedom? According to सुभाष चंद्र बोस. Give me blood and I'll give you freedom. उनके अनुसार, right? According to Mr. Pathak, nothing is impossible in this world. Everything can be had by dint of hard come smart labor and concentration. आप बोल सकते हैं ऐसा. उसके बाद along with, he came here along with his father. कैसे बोलेंगे? वो अपने पापा के साथ आया सर. He came here along with his father. He came here with his father ही बोल सकते हैं, along with his father बोल सकते हैं. Because of क्या होता है? Any question? Could you tell me, Varun, because of का use? He passed the exams because of his hard work. जैसे this all happened because of you. ये सो जो भी हुआ है सब आपके कारण हुआ है. This might be in negative context also, in positive context also. This all happened because of you, surround. पॉजिटिव में बोला आपने, इसको नेगेटिव भी बोल सकते हैं. By dint of, by dint of का मतलब क्या होता है? By dint of, के द्वारा. Everything can be had by dint of hard labor and concentration. By dint of means के द्वारा. Everything can be had. यहाँ had का मतलब हुआ प्राप्त करना. हर कुछ प्राप्त किया जा सकता है. Can be had, बी के साथ स्वभाव का थर्ड फॉर्म आता है. तो हर कुछ प्राप्त किया जा सकता है. कैसे? By dint of के कारण. किसके कारण? Hard come smart labor and concentration.
अगर आप हार्ड कम स्मार्ट लेबर कंसंट्रेशन दे तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ किया सकता है, राइट। अब उसके बाद है बाय मीन्स ऑफ, के जरिए, बाय वर्च्यू ऑफ या बाय मीन्स ऑफ, राइट। So he passed out the exam by virtue of his merit, या by virtue or by means of his merit, के जरिए, के द्वारा, by means of, by virtue of, in lieu of, के बदले में, सुना होगा, he gave me a pencil in lieu of a pen, कैसे बोलेंगे? He gave me a pencil in lieu of a pen, उसने मुझे पेन के बदले में पेंसिल दिया। अब आप सेकंड, इन अकॉर्डेंस विद, ट्रिकी वर्ड का देखिए यहाँ पे इन है, अकॉर्डेंस है, विद, इसका मतलब क्या हुआ? के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विद, इन एडिशन टू, आपने सुना होगा, ऑन बिहाफ ऑफ, वरुण could you tell me on behalf of means? You On you behalf are of, passing the exam. या फिर you are on behalf of की तरफ से, जैसे he congratulated all the students on behalf of his boss, उसने बॉस की तरफ से सबको congratulate किया। I would like to congratulate all of you on your success on behalf of my director, तो फिर डायरेक्टर की तरफ से you आप are सबको बधाई। promoted in the next class on behalf of your result. हाँ, बिहाफ ऑफ की तरफ, बिहाफ ऑफ किसी व्यक्ति के लिए आता है, राइट। ऑन बिहाफ ऑफ व्यक्ति है, Yes, कोई sir. कंट्री है, उसकी तरफ से। अब यहाँ पे नेक्स्ट है इन फेवर ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, ये सारे हैं जो आपने करने हैं, इनका वर्ड ढूंढना है। अगले क्लास में हमने कुछ बताए हैं आपको और आप सभी को करना है ये सब चीजें। इसका पिक ले लें प्लीज। तो नेक्स्ट क्लास में यू कैन शो मी, आप मुझे दिखा सकते हैं इसके बारे में, राइट। नेक्स्ट वन, मेड एंड वुड, इसके बारे में पढ़ना है। वरुण इसको पढ़ के बताएं तो प्लीज, क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज रिटन, और समझना है और बोलना है मुझे लास्ट में। Okay, sir. Unfortunately, the stepmother was very cruel. She made the little girl work in the kitchen all day long. The cinders from the fireplace left black marks on the young girl's fair skin, so she came to be called Cinderella. Cinderella had 3 stepsisters, too. They were all ugly. They all were ugly, so they were very jealous of her. They used to treat her very badly. They made her wash and iron their clothes. Cinderella would rub and scrub the house floor till it shone, and then she would run into the kitchen to make lunch for them. They always demanded for one thing or the other to keep her busy all the time. Her father used to be away on trade trips, so he never knew how his little girl was treated. Every night, Cinderella would go to the bed after completing all his household chores. Yes, darling, please. Done. Yes, sir. Now tell me the meaning of this one. Within 10 minutes से फिनिश हो जाएगा, तो उसके बाद सेकंड आप और दोबारा से आ जाएंगे। बताएं प्लीज, व्हाट डज इट मीन? सर, इसमें हमें अनफॉर्चुनेटली द स्टोरी स्टेप बताई मदर गई है वाज वेरी सिंड्रेला क्रूअल। की। हाँ बताएं, यस टेल मी प्लीज, बताइए। तो जो स्टेप मदर थी वो बहुत क्रूअल थी, मतलब निर्दयी थी बहुत, और वो उस छोटी बच्ची से किचन में पूरा दिन काम करवाती थी। और सर उसको क्या बोलते हैं जिससे फायर प्लेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? फायर प्लेस और सिंडर को? फायर प्लेस फायर प्लेस एंड सिंडर।
The cinders means cinders में राख, from the fireplace. Cinders means क्या होता है? राख, और fireplace में जहाँ पे आग जलती है. उसको हिंदी में एक एग्जैक्ट कोई वर्ड उसके लिए? अब इतना ही बोलने की जो राख थी वो वहां से, क्योंकि क्या करते थे, सिंडर्स फ्रॉम द फायरप्लेस लेफ्ट ब्लैक मार्क्स ऑन देयर, बिकॉज जब वो खाना बनाती थी तो क्या होता था, जो फायर, राख उड़ करके उसके पूरे शरीर पे आ जाती थी, है ना, जो मार्क क्या बनाती थी, जैसे उससे काला काला हो जाता था उसका चेहरा, इसीलिए तो क्या कहा गया, जो फायर प्लेस की जो राख थी, तो उससे धीरे धीरे उसके स्किन पे ब्लैक मार्क्स आने लगे, तो उसका नाम सिंड्रेला पड़ गया। तो जो सिंड्रेला थी उसकी 3 स्टेप्स थी, तीनों जो थी दिखने में बहुत बदसूरत थी, तो वो उससे जलती थी और उससे बहुत बुरा व्यवहार करती थी, और वो उसे अपने कपड़े धोने के लिए और प्रेस करने के लिए दे देती थी। सिंड्रेला उनके कपड़ों को रगड़ रगड़ के धोती थी, और हाउस जो फ्लोर होते हैं मतलब पोछा लगाती थी, जब तक वो चमके ना, और फिर वो किचन में जाके खाना बनाती थी उनके लिए, लंच जो होता है, और उसके बाद और उसकी जो स्टेप सिस्टर थी तीनों, वो उससे हमेशा एक ना एक काम करवाती रहती थी ताकि उसको बिजी रखे हमेशा। अब उसके जो फादर थे वो ट्रेड ट्रिप्स पे रहते थे, मतलब जो ट्रेडिंग का काम था, तो ट्रेड ट्रिप्स पे जाते रहते थे, तो उनको उतना पता नहीं था कि उनकी बेटी को ऐसा ट्रीट किया जा रहा है। और हर रात सिंड्रेला अपना सारा घर का काम करके बेड पे चली जाती थी। वेरी गुड, बहुत अच्छी, इसमें कुछ बोलना चाहेंगे आप भावना? Yes, sir. बोलना चाहेंगे इसके बारे में आप, जो आपने समझा है, देखा है अब तक इस कहानी को? No, sir. इसमें आप 5 प्रीपोजिशन का नाम बताइए, टेल मी 5 प्रीपोजिशन। क्या आपको लगता है कि 5 कोई प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज किया गया है? पहले एक Yes, प्रीपोजिशन sir. का नाम बताइए, पहला प्रीपोजिशन बताएं। So second line में in the kitchen, in. इन है, ओके। उसके बाद और कोई प्रीपोजिशन नेक्स्ट? Cinder from the fireplace, from. फ्रॉम प्रीपोजिशन हुआ, और नेक्स्ट वन? And on the young girl, on. क्या? व्हाट? ऑन, Third line में ही on. ऑन है, ओके। और कोई नेक्स्ट वन? And so into the kitchen, run into the kitchen, so into. इनटू द प्रीपोजिशन हो गया, और नेक्स्ट वन? So her father used to be away on trade trips, so on. ऑन है Let's say. यहाँ पे, ओके। So he never knew how his father was to do every once in a while. So to bed, maybe. No sir, बस इतना ही है. Okay. So you have seen that, और adverb का नाम, what would you tell me one adverb name? एक adverb इसमें कौन सा है? Anyone, one adverb. You must have heard generally adverb की पहचान कैसे कर, जिसके लास्ट में ly लगा होता है ना? जनरल, ऐसा नहीं कि ly वाले ही सारे adverb होते हैं, कुछ और, जैसे very is a very beautiful girl, जो वर्ब के बारे में बताते, जो yes, वर्ब की क्वालिटी बताते कि किस टाइप yes, का है, yes, तो वो होता है। yes. तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो हुआ, क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली ly लगा हुआ है, इसलिए एडवर्ब है ना?
Yes, she sir. made the little girl walk in the kitchen all day long. भावना, इसका मीनिंग क्या हुआ? She made the little girl walk in the kitchen all day long. What does it mean? सर कौन सी लाइन है? फर्स्ट लाइन में ही है, she made the little girl walk in the kitchen all day long. सर वो छोटी बच्ची को पूरे दिन किचन में काम करवाती रहती थी. वेरी गुड, वेरी, बहुत अच्छा. यहाँ पे मेड का मतलब वो दूसरे के थ्रू काम करवाना. She made the little girl walk in the kitchen all day long. Very good, nice. So you have seen all these made and would. यहाँ पे हम दो यूज किया है, हमने made भी यूज किया है and would भी यूज किया है. चलिए उन्होंने एक would का एग्जांपल आप बताएं प्रॉपर समझाते हुए. would का क्या यूज कर सकते हैं आप इसके सेंस में जो आपने यूज किया है यहाँ पे? Sir, wood is also wood is known. Wood is one of the modals, and it is the past form of will. And in this passage, it is used. It is used in the maybe last sixth line. Sixth line from the last. She would run into the kitchen to make lunch for them. So basically it means that ऐसे में बता दो वुड का मतलब जनरली क्या होता था? थी क्या होता? वो जाती थी. She would go, है ना? She would go into the kitchen. yes sir. ओके, वो मेरे पास आती थी. She would come to me. वुड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किया जाता है. जैसे मैं मंदिर जाता था, कैसे बोलेंगे इसको? I would go to the temple. I would go to the temple. वो मेरे पास आती थी, कैसे बोलेंगे? She would come to me. हाँ, वुड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट मोडाल से इसलिए फर्स्ट फॉर्म किया जाएगा. She would come to me. राइट. मैं उसे बात करता था. I would talk to him. जैसे ऑफ हो जाएगा दोबारा से आप ऑन कर लेंगे. राइट. एंड Okay sir. last moment I would like tell you made and would. I have taught you all these. एंड यहाँ पे है वुड के बारे में. राइट. Here Cinderella would scrub and rub the house floor till it's shown. भावना, इसका मतलब क्या हुआ? Cinderella would scrub and rub the house floor till it's shown का मतलब क्या हुआ? सर कि सिंड्रेला जो थी वो पूरे घर को तब तक रगड़कर साफ करती थी जब तक कि वो चमकने ना लग जाए. वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना. सिंड्रेला